ओके। बाजार में हर साल इंतजार रहता है मोतीलाल ओसवाल की सालाना वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट का, और मोतीलाल ओसवाल ने आज ही साल 2024 की ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें न सिर्फ पिछले 5 साल का विस्तार से अध्ययन किया गया बल्कि आगे की वेल्थ क्रिएशन थीम का रोड मैप भी पेश किया गया। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए खुद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। और ये जो आपकी एक रिपोर्ट है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको मैं खुद पढ़ता हूँ और आपकी टीम मुझे थोड़ा पहले भेज देती है ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं उसके लिए। इस बार की जो आपकी थीम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको छोटे स्टॉक्स में वेल्थ क्रिएशन होगा। इस बार आपका टॉपिक है क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू ब्रूज्ड ब्लू चिप्स। तो पहले तो ये टॉपिक आपने कैसे सोचा, और उसके बाद हम इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये कहाँ से दिमाग में आया कि क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू ब्रूज्ड ब्लू चिप्स? अनुज, ये चालू हुआ हम 3 लोग हैं जो लिखते हैं इस स्टडी को। मैं मतलब मेरे ऑफिस में बैठते हैं, मैं, ध्रुव मेहता और श्रीनाथ जो मेरे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। ओके। सो श्रीनाथ इज द इस बार हम सबसे पूछे थे क्या स्टडी करें। सो 2-3 ये था कि व्हेन टू सेल, मार्केट इज ऑन हाई, सो दैट वाज वन टॉपिक। सेकंड वाज द टर्न अराउंड। सर बोला कि सर वी हैव नॉट डन ऑन टर्न अराउंड, मतलब लेट्स स्टार्ट। So we ran the data first time. We realized it's very tough subject. Turnaround is very tough subject. Then we found a book, and in that book he talked about how to make money. This fund manager, I'm forgetting his name. He makes money only by turnaround stocks in US, and he's written a 30-page book on how to make money out of turnaround stocks. I said we got a framework, and now let's work on this. Okay. So there he talked about whenever any stock falls by more than 50% from their recent highs, all-time high or recent high, okay, the last 5 years high. In India, 5-year high is the all-time high always. So generally. So when it falls more than 50%, so then you have to find. See, there could be hundreds of stocks like that, but in them you have to find bruised blue chips and busted growth stocks. When you find these 2 category stocks, then you go about completing the process of buying. But then we said this, let's pick up the bruised blue chip part. I mean, rather than doing everything, so we said turnaround of bruised blue chips is the only segment we'll do it. Next time, if time permits, we'll do the busted growth stocks. Okay. So this time we picked up bruised blue chip. Okay. Now then the first problem was, What is a blue chip? What is a blue chip? मैं उसी पे आने वाला था कि ब्लू चिप को हम डिफाइन कैसे करेंगे। क्या इसे मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या ब्लू चिप है? और क्योंकि ये तो हाइंडसाइड में पता चलता है कि क्या ब्लू चिप था या क्या नहीं था। Blue chip has to be defined, and I think everybody can have a different definition. But for the study, I mean, with my experience and all, I said any company which has earned more than 20% for last 10 years. Okay. And of size, both. So that company will term it as blue chip because 20% आपने 10 साल कमाया, मतलब आपने कुछ गुदा है to stand in the market, and you are of the size. So we said we'll look at only top 250 companies. So that gives a sense of size, and 10%, 20% ROE. So that gives about 80-90 companies. Then the guys, they said there are a lot of large companies, very large companies like Reliance and all. They're not 20% ROE because of a lot of investments they are going through. So then how do you exclude them from blue chips? So then we said let's take all the Nifty 50 companies, irrespective of the ROE level. Okay. We'll take it as a blue chip, you know, because they have their own kind of stature to be this thing. So we'll take them as blue chips, and any company which has this is part of the rest of the 200 and more than 20% ROE for last 10 years. So we got 107 companies, and that's how we set the definition for blue chips. Now, what is a bruised blue chip? Is the company in last 5 years, whatever high is, in now after the 5 years complete, it is fallen by more than 50%. 50%, okay. Till 50% it is correction. Okay, but below 50% it's bruised. Bruised. Now it is seriously bruised because somebody thought, I mean, in a market, if somebody thinks that if a stock is traded at $1,000, so somebody thought the value of the company is 1,000 rupees. Now it has fallen to 500 or below. It means that company is thoroughly bruised, and there must be some reason behind that. Okay. Either earnings disappointment or misallocation or competition or something must be there. So then we went about analyzing the sources of
sources of trouble and what could be the remedy for that. Okay. And how do you buy them. ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में हम काफ़ी स्टॉक्स के नाम डिस्कस करेंगे, वो प्योर एक एग्जाम्पल के तौर पर है, उसको किसी तरीके से रिकमेंडेशन ना समझा जाए, ये पहले डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। रामदेव सर, इसमें एक चीज़ है बस, अब मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे येस बैंक था, या इंडिया बुल्स हाउसिंग था, या एक समय पे जेट एयरवेज था, सुजलोन था एक समय पे, ये सारे, हालांकि सुजलोन ने भले ही कम बैक किया हो, ये सारे के सारे एक समय पे, बट दे वर नॉट ब्लू चिप्स। अच्छा, दे वर नॉट ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स पहला ये निफ्टी के स्टॉक्स थे, लेकिन यदि निफ्टी के स्टॉक थे तो यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्लियरली इफ दे हैड फॉलन फ्रॉम देयर, दैट एंड सी इट इज completely not infallible, but they have to be blue chip. Yes Bank did it make to the Nifty? Yes Bank Nifty का हिस्सा था। Yeah, so definitely it would qualify as a blue chip, and yes, I mean it didn't recover. So मेरा सवाल ये है कि कहाँ पर हम ये डिसाइड करें कि ये ब्रूज्ड है, और कहाँ पर हम ये डिसाइड करें कि नहीं, ये तो स्टोरी खत्म हो गई है यहाँ पर। देखिए क्या है, ultimately investing is not only statistical. You have to at the time see. If something is bruised or hurt by 50-60%, it means it makes it interesting. Second, it is a blue chip. Yeah. In fact, I would rather prefer more than the size. I would go by 20% ROE. Okay, that's my preferred mode. So that makes me very comfortable because somebody has earned 20% for last 10 years. वो X of Nifty भी हो सकता है वो stock. X of Nifty also. Any stock actually as a framework. That makes me very comfortable. ठीक है. So that stock, why it has fallen? I mean, what has happened? Is it internal to the company or is it external to the company? You know, so you have to figure out that and then finally take a judgment whether this company is going to survive in a given situation. Is it going to survive? And more importantly, is it going to prosper? So generally, the companies which are blue chips, they have very strong tendency to come back. Okay. You know, because it's like a Rishabh Pant getting hurt. अब ऋषभ पंत मतलब उसको एक्सीडेंट हो गया, 2-3 साल के लिए बाहर है, लेकिन आया तो रेडी मारा ना, वो बिल्कुल पूरा कैप्टन बन गया है। तो जैसे मान लो विराट कोहली है या कोई भी, सचिन तेंदुलकर, यदि दो चार इनिंग्स में मान लो 0 बना दिया, इसका मतलब सचिन डजंट बिकम यूजलेस और विराट डजंट बिकम यूजलेस। व्हेनेवर ही कम्स बैक ही विल हिट अ सेंचुरी अगेन बिकॉज ही नोज द गेम, ही नोज बैटिंग and he can bat in toughest of the situations. तो ये जो जितने जो 20% ROE के blue chips होते हैं, they have that core capability. You know, so when they come back, not only they come back to retrieve their last position, then they go for the kill. जैसे महिंद्रा 600 रुपये से गिर के 300 हुआ। बिल्कुल। उन्होंने चेंज किया मैनेजमेंट, उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर बदला, बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन किए, जब वापस आए तो 300-600 नहीं हुआ, 3000 हो गए, एंड स्टिल काउंटिंग। नाउ इट हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑटो कंपनी इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एटलीस्ट। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन मारुति, मोर एक्सपेंसिव देन टेल्को। सो व्हाट आई एम बेटिंग ऑन इज द फर्स्ट, आई मीन आपका क्वेश्चन सही है, विच वन टू लिव, विच इज ब्रोकन। ब्रूज्ड और ब्रोकन में फर्क है। ब्रूज्ड और ब्रोकन में, हाँ। रामदेव सर, आपने क्योंकि बात करी ही है महिंद्रा की, मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपको मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लिखने में पेन भी हुआ हो, वो आउटडेटेड स्ट्रैटेजी में आपने हीरो मोटोकॉर्प का नाम लिया। मैं जानता हूँ कि आपका फर्स्ट लव हीरो मोटोकॉर्प है ना, आप काफ़ी हर्ट फील हुए होंगे उसके बारे में, लेकिन ये भी फैक्ट रहा कि वहाँ पर शायद वो थोड़े पीछे रह गए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा कमबैक तो रहा है आप हीरो मोटोकॉर्प में भी। ये इस कमबैक, हाँ एग्जैक्टली, गिवन एज मोर एज पॉजिटिव कि भाई देयर इज अ चेंज ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम 2400 स्टॉक इज 5000, सॉलिड डबल इन लास्ट 1.5 years. So there is a massive comeback on the change of the management and he has his own strategy. तो ऐसी कंपनियों में मतलब जहां पर आपने इतना वेल्थ क्रिएट किया हो, इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड रही हो, सब कुछ रहा हो, इसमें फिर आप को ये यकीन, कब तक ये यकीन रहता है कि नहीं ये ब्रूज्ड है और ये कमबैक करेगी? जैसे हीरो मोटोकॉर्प फॉर एग्जांपल की तरफ बोल रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस था कि ये कमबैक करेगी? जैसे कोई डाउट नहीं था, कोई डाउट नहीं था। जैसे लाइक इंडियन होटल एट $70, आई हैड नो डाउट, DLF एट $70, आई हैड नो डाउट, बट आई डिडंट हैव फ्रेमवर्क। मेरे पास फ्रेमवर्क नहीं था। मैं दिल्ली में जाके कहीं पर भाषण भी दिया हूँ कि मैं बोला भैया तुम लोग अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बेच दो, 70 रुपये में DLF खरीदो। बट वो सिर्फ एक मतलब एक वन ऑफ डिस्कशन था। अभी मेरे पास फ्रेमवर्क है। सी दिस स्टडी इज मोर अबाउट द फ्रेमवर्क देन एग्जाम्पल्स। भाई हाउ टू थिंक अबाउट अ ब्लू चिप इन ट्रबल। तो इसमें वाई ब्रूज्ड में आपने 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक तो है स्टॉक रिलेटेड
एक है कंपनी रिलेटेड कि एक बार तो कहीं तो स्टॉक ही गिर जाता है, वो अलग फैक्टर है, एक कुछ कंपनी रिलेटेड है, तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन है बेसिकली? हाँ, सीधे स्टॉक जो स्टॉक रिलेटेड है उसमें इट कुड बी से कोविड में बाजार ही 50% गिर गया, ओके, तो स्टॉक ही 50-60% गिर जाएगा ना, हाई से। सब कुछ मतलब नथिंग इज स्पेयर्ड एट दैट टाइम ना। हिंदुस्तान लीवर और 2-4 कंज्यूमर स्टॉक को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे बैंक और सब पिट जाते हैं। सो एट दैट टाइम स्टैटिस्टिकली तो 50% गिर गया ना, सो इट हैज बिकम ब्लू चिप। ओके, एंड उसका रेमेडी एक ही है, लेट द मार्केट कम बैक, एंड व्हेन द मार्केट्स कम बैक ऑल द जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हुआ था, जीएफसी में ऐसे हुआ, बैंक्स और का दाम वन बुक बिलो बुक इस टाइप का हो गया था। सो लाइक आई थिंक एचडीएफसी हैज आल्सो फॉलोन बिग टाइम एट दैट। यस, सो उसका रेमेडी एक ही है कि मार्केट मस्ट कम बैक, एंड मार्केट डू कम बैक। आई मीन इफ यू सी एवरी, जब भी बाजार गिरता है इस ढंग से तो अगले 12 महीने में काफ़ी रिकवरी आती है। कोविड में हमने देखा, फरवरी में ऑल टाइम हाई, मार्च में ऑल टाइम लो, और जून जुलाई में वापस। So during that period you get an opportunity to buy Telco or Indian Hotel or Mahindra, all sorts of things you get at, I mean throw away on sale होता है पूरा का पूरा। So that is market related, but that's not the main thing. Main thing is other कंपनी रिलेटेड। company related. Now company related has also got दो तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, एक इंटरनल टू द कंपनी और एक्सटर्नल टू द कंपनी। बिल्कुल। एक्सटर्नल कैसे? कंपटीशन आ गया, भैया आप शांति से बढ़िया पैसे कमा रहे हो, चला रहे हो दुकान, अब मालूम पड़ा कि भैया नए बंदे को आके, जैसे टेलीकॉम है, जियो आके बोलता है नहीं मेरे नंबर 1 बनेगा, मुकेश भाई बोलते हैं नंबर 1 बनना है, तो भाई पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो फ्री में दिया आपका मतलब 1 साल तक, जैसे मतलब पूरा 10 साल तक, 5-6 साल तक लहू-लुहान हो गया पूरा बाजार। You know, so 12 प्लेयर घट के 3 प्लेयर रह गए। 3 प्लेयर रह गए, और उसमें भी क्या है फिर, आई वांट 50% मार्केट शेयर, नंबर 1, तो 0 टू नंबर 1 किया आपने, तो उसमें क्या हुआ, जो पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी था वो खत्म हो गया। तो स्टॉक जैसे भारतीय थे वो तो मतलब 200-250 कुछ भाव गए थे, मतलब बिल्कुल, तो वहाँ से आपको 1500 का भाव गया। लेकिन वो समझ होनी चाहिए भाई ये ब्रूज्ड है अभी, क्योंकि भारतीय में आई मेड मैक्सिमम मनी यू नो इन 2003। आपने तो आईपीओ से कम प्राइस पे लिया हुआ था। यस, आधे भाव एक में खरीदे थे। तो वो जो एक था जर्नी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी था। सो दैट इज एक्सटर्नल टू द कंपनी। कंपनी ने गलती नहीं किया, कंपनी ने। अच्छा, दूसरा क्या, कंपनी भी गलती करती है। जैसे कंपनी जो है, जैसे मिस अलोकेट, बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कंपनीज, सक्सेसफुल कंपनीज, दे मिस अलोकेट कैपिटल। जैसे सीजी पावर। हाँ, सीजी पावर तो मिस मैनेजमेंट की मैं बोलूँगा, बट जैसे आपको महिंद्रा का ले लीजिए आप, तो जैसे सैंगयोंग खरीद लिया आपने, अब वो टाटा स्टील कोरस खरीद लिया, तो ये सब जो है ना, मतलब भाई आपका एम्बिशन है, कोई बैंकर आके समझाता है कि 3% में पैसा मिलेगा, आप पैसे कमाओगे, और लोग चले जाते हैं, उनको मतलब दे आर कॉन्फिडेंट, वी कैन डू इट हियर, सो वी कैन डू इट देयर, बट somehow it doesn't work. Then it creates problem. Then getting out is a big problem, and it saps all the energy of the company. But then it still remains a blue chip. Like tractor में number 1 महिंद्रा था ही, बिल्कुल। So that was a cash cow. Then SUV से भी फोकस कम हो जाता है. So then they sold off Sangyong. So that is completely internal to Mahindra. Okay. So there are problems. अच्छा, there can be all 3 types of problem in one company only. There could be internal problem, there could be external problem, and there could be market related problem. So what happens is finally when the problems come together, और उसके साथ में बाजार भी डूब जाता है कोई कारण से 20-25%, तब आपको जो है ना सब फोकट के दाम में शेयर मिलते हैं। बट अब वो कैसे होगा, कैसे प्ले आउट करेगा, कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन आपके पास में फ्रेमवर्क है कि क्या क्या तरीके से कंपनी के शेयर गिरते हैं। बिल्कुल। तो जो एक्सटर्नल टू द कंपनी, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, और आपने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया है वैल्यू का, जिसमें आपने पीएनबी का एग्जांपल लिया है कि वैल्यू आउटफ्लो होती है। पीएनबी ने भले खुद चाहे कोई ज़्यादा गलती ना करी भी होंगी, लेकिन एक एचडीएफसी बैंक जैसा एक प्लेयर आया जिसने मार्केट शेयर गार्नर करना शुरू करा और लगातार करता है। तो इस केस में हम इसको एक्सटर्नल टू द कंपनी माने या इंटरनल, दोनों माने? इसमें एक्सटर्नल है ना, वो जो काम जो है, आज आरबीआई ने मान लो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दे दिया, तो प्राइवेट सेक्टर में एक देखिए बहुत लोगों को लाइसेंस मिला, 10 लोग को, सब डूब गए। खाली एचडीएफसी और कोटक, आई थिंक 2 ही बाहुबली निकले। लेकिन वो बाहुबली इतने बड़े निकले कि उनको मतलब 20% मार्केट शेयर चाहिए, 15% मार्केट शेयर चाहिए। सो वैल्यू माइग्रेशन हैपन, जहाँ पर आपका पीएसयू से सब तरीके का मतलब क्लाइंट्स, अच्छे बिजनेस, सब दे माइग्रेटेड टू प्राइवेट सेक्टर फॉर 15, 20, 25 ईयर्स। एंड एक्चुअली एक ऐसा टाइम आ गया था इन 14-15 जब इंडस्ट्री प्रॉफिट का 110% वाज विद प्राइवेट सेक्टर, मतलब 0 प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, यू नो, व्हेन इवन एसबीआई केम टू literally 0 profit. So that was the point of time of maximum pessimism in
PSU banks, हाँ. Because PSU bank also you cannot wash it away because they are 50-60% of the system. You know, तो वो चीज़ जो है ना समझने का कि भैया 150 रुपये में SBI भी बहुत डीपली ब्रूइज्ड ब्लू चिप है जो 150 का 800-850 रुपए 850 है हाँ. और अभी भी चीपेस्ट है सिंगल डिजिट पी है अभी भी चीप है, अभी भी चीप है. तो ये जो है ना कि भाई आप जब इस टाइप का ब्रूइज्ड SBI जैसे मिल जाए तो मतलब तो आप तो फिर मतलब 150 में तो ऐसा कि आप घर भर सकते हो आप. बिल्कुल. CG पावर का एक एग्जांपल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में. मतलब मुझे याद है जब भी बात होती थी FI होल्डिंग, इतनी जबरदस्त FI होल्डिंग, एक अच्छे ग्रुप से कंपनी, एक पूरी के पूरी एक ऐसे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग था. उस समय तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स ही नाम हुआ करता था इसका. यहाँ पर जब इतना बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ और जब वो स्टॉक 800 रुपए से गिर के 5 रुपए पर आ गया था, और उसके बाद मुरुगप्पा ग्रुप ने खरीदा. बट दैट इज द बिगेस्ट चेंज फ्रॉम अ से डिस्क्रेडिटेड मैनेजमेंट टू कंप्लीटली ब्लू चिप मैनेजमेंट. एंड देखिए एक्चुअली में दो चीज़ हुआ. एक तो मुरुगप्पा ग्रुप आया, विलायन वगैरह आए और दे सेट द प्रोसेस राइट. दे वेंट अबाउट लुकिंग एट ऑल द स्टेक होल्डर्स वेदर इट इज एम्प्लॉयज फर्स्ट, देन अदर स्टेक होल्डर्स लाइक बायर्स एंड ऑल ऑफ देम. और शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी जीरो नहीं करी उन्होंने. हाँ मतलब कई केसेस में हो जाती है. हाँ हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं हुआ जो भी. लेकिन इन्होंने सबसे पहले जाके पूरा का पूरा दे हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ टर्निंग अराउंड. सो दे वेंट अबाउट लुकिंग एट द कंपनीज ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड द बिल्ड रिलेशनशिप. और जैसे इन्होंने मतलब अपना टाइटनिंग चालू किया, द टेलविंड जस्ट एक्सप्लोडेड. पोस्ट कोविड व्हाट हैपेंड वाज द कैपेक्स बूम जो आया, मतलब जहाँ पर आपके ट्रांसफार्मर बिकते नहीं थे या आपके पास ऑर्डर नहीं थे या कोई लिफ्ट नहीं करता था, वहाँ पर 5-6 साल को वेटिंग लिस्ट हो गया. सो मतलब जैसे आपने टर्न अराउंड चालू किया और टेलविंड आ जाए, सो टर्न अराउंड प्लस टेलविंड, इट्स अ लिथल कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. उसी में मेरा अगला सवाल है हीलिंग, क्योंकि अगर ब्रूज्ड है तो उसके बाद हीलिंग जरूरी है ना. तो हीलिंग क्या क्या क्रिएट करती है हीलिंग, और इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए कि ये वाला जो ब्रूज्ड ब्लू चिप है अब हीलिंग के लिए तैयार है? तो दैट इज वेयर एक्टिव इन्वेस्टर्स रोल कम्स. आपका देखिए जहाँ से 60-70% गिर गया ना, मतलब समझ लो ये अभी ये वॉच लिस्ट में है. अब इसको समझने का कि भाई यहाँ पर व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल ही उसका रिपेयर होगा. ओके. इफ द इंटरनल है तो इंटरनल रिपेयर होगा, है ना. सो यदि मान लो मेरा मैनेजमेंट ही खराब है, अंदर का मेरा MD खराब है या समहाउ लीडरशिप इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो लीडरशिप हैज टू चेंज. ओके. सो द मोमेंट लीडरशिप चेंजेस, बाय दैट टाइम इतना ज़्यादा पेसिमिज्म हो जाता है, नोबडी बॉदर्स, लाइक नोबडी नोज व्हाट द न्यू लीडरशिप. जैसे CG पावर ही था सबसे बड़ा एग्जांपल. CG पावर विलायन आया तो मतलब इट वाज सच अ ह्यूज चेंज. बट वो कई लोगों ने 5 के 15 पे कैसे ले लूं, 5 का 15 हो गया, लेकिन वो फिर 15 से सीधा 700 तक गया. फिर वही मतलब अभी भी स्टिल काउंटिंग. तो मतलब वो जो बताया ना मैं आपको कि उसका ऑल टाइम हाई मान लो रहा होगा, मान लो 200 रुपया, मान लो वो 10 रुपये हो गया, तो 10 को 200 तो हुआ, बट 200 के आगे 700, 800, 1000, लाख करोड़ की कंपनी बन गई फ्रॉम लिटरली नथिंग. सो ये जो टर्न अराउंड का जो पावर है, सो नॉट ओनली दैट टर्न अराउंड विल हैपन बट इट विल प्रॉस्पर. वो इन्वेस्टर का कॉल है. तो इसमें आपने प्रोसेस फॉर इन्वेस्टर्स लिखा है, उसमें सबसे पहला है क्रिएटिव वॉच लिस्ट. यस. उसके बाद आपने 2 और इसमें थॉट प्रोसेस बताई है, जरा इस पर थोड़ा सा बात हो जाए. हाँ. सो पहले क्रिएटिव वॉच लिस्ट, रीजंस, फिर हीलिंग ट्रिगर्स. अवेट फॉर बाइंग ट्रिगर्स. हाँ, बाइंग ट्रिगर्स. सो डोंट बी इन हरी जस्ट बिकॉज 50. इट इज नॉट लाइक दैट. उसके बाद आप देखना चालू करें कि भाई व्हाट इज द सोर्स. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपनी डीपली. आप जितना अच्छा समझेंगे कंपनी को, उतना अच्छा से उसका वैल्यू समझ में आ जाएगा आपको. कि फर्स्ट इज टू फिगर आउट इंट्रिंसिक वैल्यू. 50% गिर के भी इज द कंपनी बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू नाउ. प्राइस इज बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू. सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एंड इज इट सरमाउंटेबल. कोई मतलब कॉम्पिटिटिव प्रेशर है. जैसे जियो जैसे बंदा बताया नहीं उसको 50% चाहिए, अभी उसका काट क्या है. You have to give that first position. So it's not that every, जैसे भी एशियन पेंट और बिल्डर्स का हो रहा है. बिल्कुल. एशियन पेंट ने इतने समय के बाद डीग्रोथ दिखाया. तो अब क्या है, this सब getting bruised and again corporate warfare is there. Now the issue is that whether builders will win, and how much turf they will take, 5%, 10%, and how much bloodbath will happen to get 10%. तो ये सब चीज़ों ना आप बाहर बैठ के देख रहे हैं आप. You are not in the stock. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज बॉस न तो पेंट कहीं जाने वाला है और न ही प्लेयर कुछ बढ़ने वाले हैं. तो अभी इस शॉर्टलिस्ट में रखें इसको. हाँ. सो वो चैलेंजर है, कल जाके इनकम्बेंट हो जाएगा. सो व्हाट इज गुड फॉर एशियन. सी टुडे
what is good for Asian Paint probably is not good for Birlas. But at some point of time, the moment it is 5-7%, then they will say, boss, what is good for you is good for me. जैसे टेलीकॉम में हुआ, हाँ, अब दोनों बैठ के पार्टी कर रहे हैं. फूड डिलीवरी में हो रहा है जैसे, फॉर एग्जांपल. दोनों बैठ के पार्टी करेंगे. So when the challenger becomes incumbent, the industry starts recovering. क्योंकि वो भी इवेंचुअली तो पैसा बनाने के लिए है. हाँ, तो वो जो बॉटम जो होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म, वो आप कैसे पकड़ते हैं और कितने मिलते हैं. थोड़ी किस्मत की बात होती है कि आपको क्या भाव मिला, उसमें थोड़ा बाजार खराब हो जाए और सस्ते मिल जाते हैं. तो मतलब इस टाइप के ब्लू चिप्स यू कैन अक्यूमुलेट. अच्छा, एक ब्लू चिप आपका पूरा कैरियर बदल सकता है. अच्छा, बिल्कुल. देन आफ्टर स्पॉटिंग इट प्रॉपरली, देयर इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ हाउ मच यू अलोकेट. और कितने टाइम तक बैठे रहे उसमें, कितना पेशेंस तो लाना ही पड़ेगा. अनलिमिटेड पेशेंस वाला काम है. दूसरा ये कि कितना डालें उसमें कैपिटल, रामदेव सर, कितना कैपिटल डालें उसमें फिर ऐसे में? देखो, मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ इसका, मैं तो कहानी लिखा हूँ खाली. प्रैक्टिशनर था राकेश. अच्छा, वो डालते थे. ही वाज द किंग ऑफ इट. दैट्स व्हाई वो अमित गोयला भी रहेगा ना, बताएगा सब कहानी वो. तो ही बॉट अभी जस्ट बिफोर हिज डेथ, ही बॉट इनटू इंडियन होटल एट 70-80-90 रुपए में खरीदा. करोड़ शेयर अभी भी होगा उसके पास. 800 रुपये हो गया अभी. हाँ, और ये क्या नाम है, टेल्को खरीदा लेस देन 100 में. वो तो खैर वेल डॉक्यूमेंटेड था टाटा मोटर्स का, तो उन्होंने बोला था कई बार. लेकिन इवन एस्कॉर्ट्स खरीदा था ऐसे ही. 10% खरीदा था एस्कॉर्ट्स का. सो ही हैड गट्स टू बाय परसेंटेजेस ऑफ द कंपनी. आई नो. राइट, एंड ही बॉट 10%. मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आते ही मैंने पहले दिन न्यूज़ पढ़ी थी, राकेश झुंझुनवाला बायस 5% इन प्राज. तो फिर उस समय मैं कहा था कि 5% मतलब सीधा एक ही दिन. होता क्या ना, सी इफ यू हैव 50,000 करोड़, ये सब कंपनी तो कचरे दाम मिलते रहते हैं. तो पुटिंग 500,000 करोड़ इज इजी. बट मैं हूँ ही मान लो 100 करोड़ का, तो मैं कितना डाल सकता हूँ. बट इवन इन 100, इफ यू पुट से 10, 15, 20 करोड़ इन दिस हाई कन्विक्शन स्टॉक, बिकॉज योर डाउन साइड, सी द बेस्ट पार्ट, वाई ब्लू चिप्स, द बेस्ट पार्ट इज द ब्लू चिप्स, दे नेवर गो टू जीरो. एक्सेप्ट वेरी few. 10 में से एकाध हो सकता है. बट दैट्स व्हाई योर जजमेंट कॉल्स, कि जहाँ पर लिटिगेशन है, जहाँ पर चोरी चमारी की बातचीत है, स्टे अवे टिल द क्लाउड इज नॉट क्लियर. यू नो, आई मीन जनरली डोंट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल प्लेसेस. ये जो कंपटीशन वाला है वो बेस्ट प्लेसेस है. वहाँ पर आपको मालूम है सैनिटी विल कम सूनर देन लेटर, बिकॉज द गाय हु इज कमिंग इन, वो भी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं. अच्छा, इसमें आपने पहली बार थोड़ा टेक्निकल वो भी डाल दिया. बुक में है. सी ही इज सेइंग दैट इफ यू वांट टू गेट टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म, इट्स नॉट माय सब्जेक्ट, इट्स नॉट माय कॉम्पिटेंस टू से डबल बॉटम ये वो सब. लेकिन फिर हम जनरल से बात करते हैं नॉर्मली उसके लिए. हाँ, तो नहीं, जनरली वो बुक में लिखा है टू कट द वेटिंग पीरियड. सी हाउ डू, ये हो सकता है कि आपको ये मारा पीट या जो भी कारण से तकलीफ है, 5-6, सो यू कुड बी इन वैल्यू ट्रैप. सो हाउ डू यू अवॉइड द वैल्यू ट्रैप and make it as short as possible. बिल्कुल. अच्छा रामदेव सर, अब आज की डेट में कौन कौन से, सिर्फ एक केस स्टडी के हिसाब से आपको लग रहा है कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रूज्ड कैटेगरी में आएंगे? So, हमने लिस्ट दिया है, देखिए उसमें कुछ 10-12 कंपनी हमने दिया है. So the companies which are getting bruised right now, I'm not see, first thing is very few companies have crossed 50%. So for me it is only correction. ये ब्रूज नहीं है अभी. जब तक 50%, सी क्या होता है, बाजार का जो ऑप्टिमिज्म होता है ना, उसको किल करने के लिए टाइम लगता है. मतलब सीरीज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जरूरी है, तब जाके बाजार जो है डिसअपॉइंट होता है. तो क्योंकि ब्लू चिप में इतने पैसे कमाए होते हैं लोग, तो ऐसा हाथ से छूटता नहीं जल्दी. तो ये टाइम लगेगा. खाली एक अदानी के 1-2 अदानी ग्रुप में उस पर आ रहा था कि उसमें तो, इसमें तो काफी एक्सटर्नल इंटरनल, इसमें समझ नहीं आ रहा कि एक्सटर्नल या इंटरनल है. लेकिन जब तक सी बाजार का एक खास बात है, इसमें कोई भी स्टडी में जो चीज समझ में आता है वो नहीं करने का. ओके. सो स्टे अवे फ्रॉम समथिंग व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड. यदि आपको समझ में आता है तो ऑलरेडी यू कैन सी द ब्रूजिंग इज डीप एंड यू नो. सो जैसे एशियन पेंट है 35% जैसे हो गया है, एंड द कॉर्पोरेट वॉर इज ऑन, एंड फर्स्ट क्वार्टर के खराब रिजल्ट आया है. अभी तो कम 3 क्वार्टर तो खराब आएगा ही. तो यू नो, अच्छा उसके ऊपर से देखिए अब कैसे हो रहा है. ये तो कॉर्पोरेट वॉरफेयर चल रहा है, कंजम्पशन है स्लो डाउन. अब देखिए कैसे, मतलब व्हेन ट्रबल कम्स इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल साइड. बिल्कुल. अब आप कंपटीशन से पूछने जाओ तो वो बोलते हैं कि वो कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, कंजम्पशन ही नहीं बोलता है. समझे ना, कंजम्पशन खराब है. Q3 भी पिटा हुआ है दिवाली वाला. सो ही इज सेइंग दैट भाई हमको प्रॉब्लम कंपटीशन से नहीं, हमको प्रॉब्लम है ग्रोथ से of the industry. तो स्लो डाउन ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो पुशिंग प्रॉब्लम. सो जनरली क्या होता है कि
2 3 4 बार 3 4 5 क्वार्टर खराब आता है ना, देन पीपल स्टार्ट गेटिंग डिसअपॉइंटेड। अच्छा, जो थोड़ा नीचे में खरीदा जैसे 50%, कोई बराबर से नहीं पढ़ा रिपोर्ट और मान लो 50% नीचे में खरीद लिया और मालूम पड़ा एक क्वार्टर के बाद और 10% गिर गया, तो वो जाके वही आदमी बेचने के लिए आता है। तो ये क्या है कि ये मतलब इतना इजी नहीं है, ये लिखना बहुत इजी है, प्रैक्टिसिंग दिस इज वेरी टफ। So the guys who have practiced this, I have not practiced. I have practiced just the other way around. High quality company in growth mode. That we have practiced as QGLP. ये हमारा antithesis of my own style है। बिल्कुल। चलिए खैर, ये तो बात बहुत शानदार आपने की। एक आपके जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है उसमें आप 100 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स डालते हैं, उसमें आप मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स डालते हैं और बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स भी डालते हैं। पर्सनली आपका सबसे फेवरेट क्या है कंसिस्टेंसी वाले वेल्थ क्रिएटर्स? I love to see first two. The way हमारा पुराना है, largest and fastest. Largest and fastest. Okay. When actually जब largest and fastest दोनों एक साथ आता ना, एक ही कंपनी में, जो टेक के टाइम में हुआ, जब इन्फोसिस, विप्रो, they used to be fastest and biggest both. So मतलब when large size, very rarely you will find large wealth creation at a rapid pace. Okay. Generally size is enemy of speed. मतलब 50% ग्रोथ या 100% ग्रोथ डजंट हैपन ऑन अ लार्ज कैप। वो होता है 5-6 हज़ार करोड़ से चालू करो और उसको धड़ करके आपने 1 लाख करोड़ कर दिया, वो पॉसिबल है। पर 1 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ करना बहुत टफ है। तो जब दोनों होता है ना, मतलब ये कुछ बहुत ही बड़ा मतलब यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आया जो Y2K का था। ऐसा मतलब जो $1 बिलियन एक्सपोर्ट से $250 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर पावर हाउस, डिजिटल इंडिया बन गया। तो ये टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो अभी इसमें हो रहा है रिटेल में, जो क्विक कॉमर्स में हो रहा है, ट्रेंड में या फिर जोमेटो वगैरह में जो हो रहा है, जोमेटो, जेप्टो और ये क्या नाम है, ब्लिंकिट, इसमें जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। मतलब $1 ट्रिलियन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी 10-15% भी यदि मान लो ट्रांजिट हुआ तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। एंड रैपिड, मतलब इट इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। बिल्कुल। और यही राकेश जी और रामदेव जी ने महारत हासिल कर रखी है इन चीज़ों में, इनको अच्छे से क्वांटिटी में इनको कब लेना है इस पर। रामदेव सर, ये तो खैर बात की हमने पूरी की पूरी आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी की, इस पर मैं 3 घंटे की बात कर सकता हूँ, ये खत्म नहीं होगा, ये इतना शानदार टॉपिक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपसे 1-2 सवाल करंट मार्केट सिनेरियो पे पूछना चाहता हूँ। कल बड़ी डेवलपमेंट हुई, RBI के नए गवर्नर अपॉइंट हुए। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और क्या जो कंटिन्यूटी और वो सब रहेगा मार्केट में इस समय, उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जो आउटगोइंग गवर्नर ने जो काम किए 6 साल में, तो द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ही ब्रॉट, एब्सोल्युटली, एंड सो ही रियली हैंडल्ड विथ अ लॉट ऑफ maturity. So I think he's leaving a fantastic legacy for the new governor. Now, new governor is coming from a brilliant background, of course, into IAS and revenue secretary, and also I think he must be knowing the pain of slowing down of the tax collections and all. So I think he may. As I'm a bullish guy, always optimist guy, I would expect that he will accelerate the credit flow in the system, and for that, what all needs to be done, that of course he understands, and that, see, in my mind, GDP growth means credit growth, and GDP growth means tax growth. See, everything is equal to. So if now what are the tactics or how they will approach the bureaucracy and finance ministry and RBI and fiscal authorities, I don't know. That we'll see unfolding in next 5-10 days. बिल्कुल। एक और चीज़, मार्केट पर एक बड़ी करेक्शन आई, अर्निंग सीजन बहुत ख़राब था पिछला बार। आप तो हमेशा कहते हैं कि आप जितने नंबर आपको देता है आप उसमें थोड़ा कट कर देते हैं, तो लेकिन क्या ये पेन खत्म होने के कुछ चांसेस हैं रामदेव सर, या फिर अभी थोड़ा सा और पेन रहेगा मार्केट में? मेरे ख्याल वी आर इन द फैग एंड ऑफ दिस थिंग, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स, earnings disappointments, because it was truly because of this first quarter's problem of election and then the drought and then intense बारिश, सब एक साथ हो गया। और इलेक्शन हो गया तो पीपल वर ऑल बिजी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस इलेक्शन, खर्चा ही नहीं हो रहा था वो। हाँ, सो वो भी क्या क्या इलेक्शन के सब वो चक्कर होते हैं। सो नाउ आई थिंक नाउ दे विल स्टार्ट वार्मिंग अप द मशीन। सो मेरे को लगता है नहीं Q3 विल बी एनीथिंग वर्थवाइल। I think in Q4 there will be a bumper this thing, but the real spillover and action will be
first half of next year. By 25. So Q4 and first half of next year, I would be very hopeful that economy will roar back into the led by. See, if you see the हमारे report में भी लिखा हुआ है, if you see the actually earnings trajectory change from 2020, it was about 450 rupees, 457 to be exact, Nifty earnings in 2020, and it was lingering at about 7-8% for last 5-6 years. Then in post-COVID, it shot up at the rate of 18%. And in next 4 years, it doubled to 1,000 rupees. That was in last year. 24 was 1,000 rupees. Now, they were expecting same 15% growth, which got tripped this year. मेरे ख्याल से there is a fundamental shift in the structure of the economy. And that's why there is a complete change in the type of companies which are showing the growth. मेरे ख्याल से pre-COVID, we are very, very consumption dominated. Post-COVID, it became capex dominated, more particularly government capex dominated. So the type of companies which did very well till 20, like Nestle, Lever, Asian Paints, Marico, I think those companies are struggling right now. चलिए रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपकी शाम को जो प्रेजेंटेशन होगी और जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी पर आप डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने। थैंक यू। चलिए इस शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।